Okay, very good morning, everyone. As I didn't get any questions or any doubts from anyone from previous chapter, so let us proceed with the new chapter. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? Anyone is saying something? Okay, so the chapter which we have next is all about the symmetry. First, let us try to understand what the symmetry is. The term symmetry means the same or the identical part of a particular figure or of a particular shape. तो जब भी सेम फिगर अगर आप लोग स्टार्टिंग में देखोगे ऑफ द चैप्टर नंबर 18 देयर इज ए टेक्स्ट रिटन वेरिन इट इज रिटन सिमेट्री, तो आप अगर उसको पेज को उल्टा करके भी पढ़ोगे देन यू विल गेट द सेम टेक्स्ट एज लाइक सिमेट्री ओनली. तो दोनों तरफ से आप पढ़ोगे, इधर से भी पढ़ोगे तो इट विल रीड एज सिमेट्री ओनली, पेज को टर्न करके भी आप पढ़ोगे तो यू विल गेट एज लाइक सिमेट्री ओनली. सो सिमेट्री इज द सेम और आइडेंटिकल पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फिगर. अगर हम लोग अपना ह्यूमन बॉडी का बात करें और अगर यहां से सेपरेट कर दिया जाए एक लाइन सेगमेंट से, तो दिस हाफ ऑफ आवर बॉडी पार्ट will be identical as like this half of our body part. तो इस तरह से अगर इसको एक लाइन ऑफ सिमेट्री से सेपरेट किया जाए then we can say that half of our body part, this side left hand right hand side or left hand side, is the symmetry of each other. Okay, what अभिज्ञान. ओके, सो इसी तरह से अगर हम लोग अपना जो मैथ्स का बुक है इसका अगर बात करें तो दिस विल बी सिमेट्री इन दिस साइड ऑल्सो और दिस हॉरिजेंटली ऑल्सो. ओके, सो वर्टिकली ऑल्सो इट विल बी सिमेट्रिकल, हॉरिजेंटल इट विल ऑल्सो बी सिमेट्रिकल, एंड डायगोनली ऑल्सो यू कैन से this will be symmetrical. That means whenever if you fold from this side also, or if you fold from this side also, or if you fold vertically also, it will be equal or identical of each other. तो ऐसा geometrical figure जो एक दूसरे का identical हो उसको हम लोग बोलेंगे symmetry. For example, there are lots of symmetry in English alphabet also. About that also we will see. The first thing which we have in this chapter is chapter number 18. The name of the chapter is symmetry. Okay, so first we are learning about the introduction of the chapter. Okay, what the symmetry is, and if we are talking about our daily life, there are lots of examples which you can see around us. Some of the geometrical objects or some of the things wherein you can see the half of the part is exactly same as like the other half. So those type of object will be the symmetrical object, otherwise it will not object. अगर हम लोग symmetrical object का बात करें जैसे these two marker are identical to each other in the terms of shape. तो ये मैटर नहीं करता इसका कलर क्या है. अगर आप दो सेम कंपनी का बिस्किट का बात करें या चॉकलेट का बात करें या तो दो सेम प्लेट का बात करें सेम शेप एंड साइज का, तो इस तरह का जो सेम चीजें होते हैं या होता है उसको जो है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बोला जाता है, सिमेट्रिकल चीजें बोला जाता है. जैसे आप यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपका बुक में. आप अगर पेज नंबर 153 एवरीवन टेक आउट एंड यू विल सी द फर्स्ट एग्जांपल. इट इज गिवन रिलेटेड टू द नेचर.
वन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो है अगर आप बीच से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, देन one half of the butterfly is equal or symmetrical or identical as like the other half of the butterfly. So then we can say that that butterfly also have the symmetrical line of symmetry, or we can separate it out using a line of symmetry. Okay, in the same way, one example is given for the architecture also. यहाँ पे architecture का एक examples दिया हुआ है, which is we can separate it out with the help of line of symmetry, and these two part is also one half of the object is equal to the other half. तो इस तरह से कोई भी constructions हो सकता है wherein you can separate it out with the line of symmetry. अगर हम लोग स्कूल बिल्डिंग का भी आप बात करोगे, जहां पे हम लोग why lots of noises I am getting, please put on mute everyone, otherwise I have to mute myself, then you all will not be able to ask any question also. Lots of noises is coming from your side. Let me put on mute all. Then why lots of noises is coming, put on mute whoever not saying anything. जिसको कुछ नहीं बोलना है, जिसको कुछ नहीं पूछना है, म्यूट में रखो ना. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द सिमेट्री. यहाँ पे एक आर्ट जो इमेजेस है, एक पिक्चर है, उसका भी सिमेट्रिकल दिखाया गया है. तो यहाँ पे आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि अभी तक जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर आप लोग देख रहे हो, ओनली इट इज टॉकिंग अबाउट द वन टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज straight line which we can draw. Now it is not talking about the vertical one, it is horizontally only, sorry, the vertical only we have done. Now it is not talking about the horizontal one. Okay, so this is all about the line of symmetry or आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट विच वी कैन से. तो अगर कोई भी इस तरह से ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एंड इट इज आस्किंग अबाउट टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, very easily you can separate it out and check it out how you can separate it out into the similar half. So dividing the particular figure into the similar half is all about the line of symmetry. तो उसके बीच में से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं as like it is shown in your page number 153. जो भी फिगर दिया हुआ है, जो भी इमेजेस दिया हुआ है, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री करके दिखाया गया है. बटरफ्लाई का भी दिखाया गया है. अब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री तीन तरह का हो सकता है. ठीक है, तो किस तरह का लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, और इसको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है. ठीक है, ये तीन तरह का हो सकता है. एक तो ये हो सकता है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है, दिस टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. कुछ कुछ पर्टिकुलर शेप होता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया ह्यूमन बॉडी का, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द आवर बॉडी इज समथिंग डिफरेंट एज लाइक द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसको वर्टिकली ही कर सकते हैं. इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, वर्टिकल नहीं बना सकते हैं. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका एक ही बन सकता है. तो यहाँ पे इस तरह से जब भी हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, दैट टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे यहाँ पे एक स्माइली जो होता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्माइली का दिखाया गया है. ये हम लोग का सिमेट्री जो है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री का ये पार्ट सेकंड वाला पार्ट है, दैट इज वर्टिकली. तो एक जैसे कि एरोप्लेन का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है. एक जो एरोप्लेन होता है वो सबसे पहले इसका एग्जांपल लिया गया है जिसमें हॉरिजॉन्टल में होता है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टली जो जिसमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है
इसका क्या नाम है, प्लेन जो होता है इस तरह से प्लेन दिखाया गया है, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने हैं। तो इसका आप वर्टिकली इसको जो है सेपरेट नहीं कर सकते हो, सो यू कैन ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री यूजिंग डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टली ओनली। स्केल का यूज करेंगे जब भी आप लोग ड्राइंग करेंगे। देयर आर सम स्टूडेंट्स दे यूज टू ड्रॉ यूजिंग हैंड ओनली डायरेक्टली, तो स्केल का यूज करके आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे विच विल बी एज लाइक दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, एज लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल और स्पेयर जो होता है, या फुटबॉल का आप बोल सकते हो, या तो क्रिकेट बॉल का आप बोल सकते हो। ये जो होता है इसमें भी हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये हो सकता है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका हॉरिजॉन्टल, हाँ बोलो। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सब बताएं। Okay. Okay, let me. Actually, electricity light is also not there. So, what about now? Manage with that. Otherwise, I will turn this tomorrow. कल जो है बोर्ड को मैं चेंज कर दूंगा व्हाइट में. Then only you will able to see properly. ओके, सो यहाँ पे अगर आप रियल ऑब्जेक्ट का कंपेयर अगर करोगे एज लाइक एरोप्लेन, या तो इस तरह से और भी काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एज लाइक द शेप ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड, और आपका जो जियोमेट्रिकल शेप होता है एज लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये सारे शेप में जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री जो है दैट इज यू कैन ड्रॉ। ओके, कॉपी जो होता है, बुक जो होता है, ये सारे में भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। ये बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड जो है, इसमें भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो देयर आर सेवरल ऑब्जेक्ट, लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेयरिन यू कैन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली जहां पे भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट देखेंगे इस तरह से कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है आइडेंटिकल है हॉरिजॉन्टली, those type of objects you can draw the horizontal line of symmetry. After then vertical line of symmetry जिसको बोला जाता है that is like vertical line of symmetry. Vertical line of symmetry का मतलब यही होता है कि इस तरह से vertically जब भी आपको line of symmetry draw करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर स्ट्रेट लाइन से आपको सेपरेटेड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हम लोग का बॉडी बहुत ही इजी एग्जांपल है, जिसमें हम सिंपली वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करके सेपरेटेड आउट कर सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि स्माइली का जो पिक होता है, ठीक है, इसको भी आप वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री से जो है सेपरेटेड आउट कर सकते हो। ये पार्ट सेम होता है। उस तरह से और भी देयर आर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट वही है जिसका वर्टिकली होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली भी होता है। तो इस तरह से हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा एक आता है डायगोनली। ठीक है, डायगोनल लाइन का मतलब ही सभी को पता है, जब एक तो लाइन होता है ये, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, अनदर लाइन वाज स्लिपिंग लाइन, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड another is the vertical line also which we have, that is slightly bend. वो थोड़ा सा बैंड होता है और कॉर्नर से मैच होता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप या तो स्क्वायर शेप जो होता है, स्क्वायर शेप स्पेशली जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, दैट इज दिस टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज डायगोनल। ओके, डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, इट कैन बी
लाइक दिस टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरह से डायगोनली हो सकता है, या तो इट कैन बी फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, डायगोनली इस तरह से इधर से भी हो सकता है. सो एनी टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री विच वी यूज टू ड्रॉ डायगोनली, जो डायगोनली ड्रॉ करते हैं, that is that type of geometrical figure or that type of object is called that is having diagonal line of symmetry. For example, अगर हम लोग square shape का बात करें, so in square we can draw the diagonal line of symmetry either from this side also or from this side also. So कोई भी एक साइड में आप लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा जो ड्रॉ करते हो इसको पार कर देना, because you are drawing line of symmetry means you are separating this out. ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है लाइन ऑफ सिमेट्री तीन तरह का होता है. ठीक है, और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट उसको बोला जाता है जो इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वल शेप में डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. ठीक है, इसके अलावा हम लोग का ये चैप्टर में इसके बेसिस पे है कि कितना, हाउ मच. अभी तो हम लोग ने पढ़ा कि व्हाट आर द लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ इन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट कैन बी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री ऑल्सो. सो हाउ मच लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर, हाउ यू कैन चेक इट आउट. जैसे कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर अगर दिया हुआ है या तो कोई भी शेप दिया हुआ है, इट कैन हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री ऑल्सो. एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, तो आपको वो चेक करना है. जैसे कि अगर इसका हम लोग बात करें, इसमें हमने देखा दो डायगोनल जो है लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ. उसके अलावा आप यहां से एक जो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो, एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आप अगर देखोगे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, एक तो हो गया ये हॉरिजॉन्टल वन, एक हो गया वर्टिकल वन और दो हो गया डायगोनल वन. सो यहाँ पे 2 + 2 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो इस तरह से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हो. तो लेट अस सी नाउ दिस टाइप ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर एज लाइक जो स्टार जो होता है. जैसे आप अगर अपना बुक में आप आओगे पेज नंबर 154 में देखोगे, देयर आर सेवरल ऑब्जेक्ट्स इज गिवन टू चेक इट आउट दैट हाउ मच टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर. तो यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है कि द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे जैसे हमने किया है इसमें, तो इसी तरह से हम लोग काउंट डाउन करके चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझना का कोशिश करते हैं कि जैसे स्टार हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इस तरह से जो स्टार शेप होता है, इसमें आपको देखना है कि कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है. जैसे कि इधर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसको और अच्छे से आप लोग ड्रॉ करना आराम से. ठीक है, इसी तरह से ये जो है थोड़ा सा बैंड हो गया, तो ये इधर से होगा स्लाइटली विद दिस. इसके साथ एक इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा. ठीक है, इसके तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा एंड ये भी थोड़ा सा स्ट्रेट होगा लाइक दिस, एंड इधर से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा. तो आप इस तरह से देखोगे कि दिस वन इज वन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस वन इज वन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस वन इज वन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस वन इज वन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो 1 2 3 4 टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर. तो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक इट आउट दैट इन ए पर्टिकुलर गिवन फिगर हाउ मच लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर देयर. तो इसके अलावा इससे ज्यादा भी स्टार में ये रह सकता है और आपको उसके हिसाब से चेक करना है. इसके अलावा 3 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, ठीक है, 1 भी रह सकता है. तो 1 2 3 जितना भी लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 से ज्यादा भी हो सकता है. सो यू हैव टू चेक इट आउट हाउ मच टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे गलती मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं कि ये सारा लाइन ऑफ सिमेट्री काउंट कर देते हैं 2 बार. तो ये एक्चुअली 2 नहीं है. ये अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है दिस यू कैन नॉट काउंट 5 बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ दिस वन ओनली. उसी तरह से ये जो पार्ट है ये सेकंड वाला का है, थर्ड वाला का है, फोर्थ वाला का है. तो टोटल 4 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि स्टार को इस स्टार को सेपरेटेड आउट करता है. उसी तरह से और भी ज्योमेट्रिकल शेप जो भी हम लोग का होता है, यू कैन चेक विद दोस टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री.
जैसे हम लोग अगर सर्कल का बात करें, सर्कल में देयर आर अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्कल में कोई एक दो नहीं हो सकता है, उसमें अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से ऑब्जेक्ट के हिसाब से वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू चेक हाउ मच लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ, and according to that answer you have to write or you have to solve. Okay, so till this much everyone understood how to count down. This is the specially classes wherein we are discussing about the introduction part. After then we will discuss about the question answer. After then we will come to the question answer. Okay, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि देयर आर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस व्हिच आर यू कैन सी एज लाइक सिमेट्री, एज लाइक सम एनिमल्स, टाइगर का दिखाया गया है, कैट का दिखाया गया है, देन यहाँ पे लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स लिया गया है, बहुत सारा और भी एग्जांपल्स, स्टारफिश लिया गया है, क्रैब्स लिया गया है, एनिमल्स लिया गया है, ये सारी चीजें जो है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है। और इसका आप देख सकते हो लाइन सिमेट्री ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एज लाइक पेज नंबर 155। एवरीवन कम टू पेज नंबर 155 एंड वंस गो थ्रू ऑल द जियोमेट्रिकल और द ऑब्जेक्ट्स वेरिन इट इज टॉकिंग अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे उसके बाद हम लोग का बात आता है अल्फाबेट का। अगर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का बात करें तो इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑल्सो वी हैव द लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे अगर हम लोग बी का बात करें, क्विकली टेल मी एवरीवन व्हिच लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी हियर। यहाँ पे कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री यूज होगा? इज दैट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और डायगोनल वन? व्हिच वन विल बी दिस? वर्टिकल। एनीवन एल्स? Horizontal and vertical both. Okay, let me see. Anyone else? Horizontal का पहले मतलब आप लोग समझिए और vertical का मतलब समझिए। Horizontal is absolutely correct answer. Very good. जिसका भी आंसर horizontal है, it's very nice. Absolutely right. Because अगर हम लोग इसका लाइन ऑफ सिमेट्री का बात करें तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकली हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकली अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो दिस साइड एंड दिस साइड विल बी डिफरेंट, तो ये अलग हो जाएगा, विच विल नॉट बी सिमेट्री। तो इसका एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसी तरह से अगर इंग्लिश अल्फाबेट ए का बात करें तो ए में क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी। इंग्लिश अल्फाबेट ए जो होता है, विच टाइप ऑफ लाइन सिमेट्री विल बी हियर? Exactly. Vertical line of symmetry is absolutely correct answer. तो यहां पे vertical line of symmetry हो जाएगा। आप लोग देखोगे कभी कभी काफी लोग हैं जो 0 एंड O में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करोगे जब इंग्लिश अल्फाबेट O लिखा जाता है, दैट इज टोटली सर्कल में लिखा जाता है, पूरा सर्कुलर होता है, पूरा गोल होता है O, ठीक है। लेकिन अगर 0 लिखा जाता है तो 0 में थोड़ा सा इस तरह से बैंड रहता है, इस तरह से 0 होता है, ठीक है। तो आपको यहां पे डिफरेंस समझने का जरूरत है कि इंग्लिश अल्फाबेट O अगर पूरा सर्कुलर है देन यू कैन ड्रॉ ए अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, और अगर वो 0 है, इस तरह से थोड़ा सा बैंड, चपटा जिसको बोलते हैं, इस तरह से है, तो आप 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके हिसाब से यू हैव टू चेक इट आउट व्हिच टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इज दैट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी हम लोग अगर बात करें इसके अलावा रियल लाइफ में है, उसके बाद रिफ्लेक्शन इन वाटर है और एक्सरसाइज 18.1 है। तो आप लोग अब इसके हिसाब से आई होप एक्सरसाइज 18.1 का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। So everyone will try to solve as much as questions you can do from exercise 18.1. I hope you can able to do all because it is very simple question. You can do in your book also. Book में भी आप बना सकते हो। As like first question is asking which letter has the vertical line of symmetry. इसमें से पूछा जा रहा है vertical line of symmetry कौन सा लेटर में होगा। So जल्दी से बताएं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 18.1 में? T, exactly. T में vertical है, बाकी में हॉरिजॉन्टल है, राइट।
जे में तो है ही नहीं, जे में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी तरफ से जे को सेपरेटेड आउट नहीं कर सकते हो इक्वल में। तो के का है, के का जो है वो वर्टिकली है, तो अगर हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकली रहता है तो के होता, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूछा गया है तो टी होगा। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल पूछा है सेकंड वाला में, तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा होगा, सेकंड वाला का बताइए। एग्जैक्टली, सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इसका हॉरिजॉन्टली में होगा। जी का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगा नहीं, एल का भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अभी आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन जो होगा। स्माइली वाला अभी हम लोग ने डिस्कस किया, इसमें कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा स्माइली में, एग्जैक्टली, तो वर्टिकली में हम लोग टिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वाला पूछा जा रहा है, सेकंड वाला भी हम लोग ने डिस्कस किया अभी प्लेन का, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, नो, वेरी गुड, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कॉर्नर में जो है ना, इसके लिए कोई भी नहीं होगा। अगर इसमें कॉर्नर में ये वाला पॉइंट वाला नहीं रहता देन इट शुड बी, तब इसका हो जाता। ठीक है, तब इसमें दोनों होता अगर ये नहीं रहता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे है, बट यहाँ पे और भी एक चीजें हैं कि हम लोग नॉर्मली कलर पे नहीं जाते हैं, कलर पे नहीं जाते हैं, तो अगर कलर को इग्नोर किया जाए तो इसका होगा, और अगर कलर को भी कंसीडर किया जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे ये, हाँ किसमें, टू में नहीं, नो सिमेट्री नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ऐसा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो आप अगर देखोगे, दिस इज प्लेन, जो एरोप्लेन जो होता है उसमें हॉरिजॉन्टली आप इसको सेपरेटेड आउट कर सकते हो, भले ही यहाँ पे फिगर में आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है बैक साइड जो है, तो आपको वो कंसिडर कर लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो। और थर्ड वाला में भी अगर हम लोग कलर को कंसिडर करें तो नहीं होगा, और अगर कलर को इग्नोर करें तो होगा, इसमें दोनों होगा फिर। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और हम लोग कलर को नहीं देखते हैं, तो आइदर आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो और कलर कंसिडर करके करोगे तो नो होगा। हाथ का, हैंड का नहीं होगा। ठीक है, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 4 का। अभी थर्ड में पूछा जा रहा है कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, होगा, इसमें आपको अपने से देखना है, उसके हिसाब से लिखना है। दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज 18.1। 18.1 इज योर होमवर्क। Okay, thank you everyone. Have a good time. Take care and join back for EVS class.